A very good morning to all of you. Now, well, students, let's proceed our chapter with this question: how was the Indian Constitution made? Now, students, let's find out how the Indian Constitution was made formally. How it was made. Now, formally, the Indian Constitution was made by the Constituent Assembly, which had been elected for undivided India, means before 1947. It held its first sitting on 9th December 1946 and reassembled as Constituent Assembly for divided India on 14th August 1947. पहले जो इसकी मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को बिफोर इंडिपेंडेंस, और दूसरी मीटिंग 14 अगस्त 1947 को जो इंडिपेंडेंस वाले दिन हुई. Its members were elected by indirect election by the members of Provisional Legislative Assembly that had been established in 1935. The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of British Cabinet. क्योंकि ये 1935 से बात हुई थी स्टार्ट, तो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइन सजेस्ट की थी और नोन एज द कैबिनेट मिशन. एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्लान ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स दे वर अलॉटेड सीट्स. हर प्रोविंस या जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको सबको सीट्स अलॉट कर दी गई प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, रफली इन द रेशो ऑफ 1 करोड़ की एक उनकी जो वहाँ की पॉपुलेशन की एक रफली प्रोपोर्शन ले लिया 1 करोड़ का. एज अ रिजल्ट द प्रोविंसेस दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, ये वो वाले थे जो अंडर ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, वर टू इलेक्ट 292 members, while the princely states were allotted a minimum of 93 seats. The seats in each province were distributed among the 3 main communities. फिर ये जो भी सीट्स थी टोटल हर एरिया की वो 3 मेन कम्युनिटीज़ में डिवाइड कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी. मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल आई मीन टू से हिंदूज, in proportion to their respective population. Now, members of each community in the Provisional Legislative Assembly elected their own representative by the method of proportional representation with single transferable vote. The method of selection in the case of representatives of princely states was to be determined by कंसल्टेशन. वहाँ के राजा के साथ, वहाँ के प्रिंस के साथ कंसल्ट करके तब वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया जाएगा. सिलेक्शन है, वहाँ पर इलेक्शन है. एन आर्टिकल. नाउ लेट्स बिगिन फर्दर. एन आर्टिकल ऑफ फेथ मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली केम इन टू बींग. जब लास्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल्कुल लास्ट में बन गई, उससे बहुत पहले द डिमांड फॉर सच एन असेंबली हैड ऑलरेडी बीन मेड. एक इस तरह की असेंबली की डिमांड पहले भी रखी गई थी, एंड दिस वॉज एकॉर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. इसकी आवाज़ उठाई थी राजेंद्र प्रसाद ने इन हिज फर्स्ट एड्रेस एज अ चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 9th December 1946. Rajendra Prasad quotes Mahatma Gandhi that Swaraj would mean wishes of the people as expressed through their freely chosen representatives. राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को कहा कि स्वराज का मतलब यही है जब हर आदमी की हर आदमी अपनी इच्छा को एक्सप्रेस कर पाए एक फ्रीली रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू. He said the idea of a constituent assembly had come to prevail largely as an article of faith in almost all the politically minded classes in the country. And this was, now let's see, the previous section जो पहले हुआ discusses the 3 factors that make a constitution effective and respectable. जो हमने पहले 3 सेक्शंस पढ़े हैं उसमें ये बात पूरी पहले ही डिस्कस हो चुकी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन से 3 फैक्टर्स थे जिन्होंने इफेक्टिव और रिस्पेक्टेबल बनाया है. हाउ फार डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास दिस टेस्ट. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन तीनों फैक्टर्स को कैसे पास किया. लेट्स स्टार्ट. कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली.
as a consequence of partition under the plan of 3rd June 1947, those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be members of Constituent Assembly. The numbers in the assembly, they were reduced to 299, of which 284 were actually present on 26 November 1949 and appended their signature on the constitution as finally passed. The constitution was thus framed against the backdrop of the horrendous violence, बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुआ था, that the partition unleashed on the subcontinent, कि पार्टीशन रुक ही नहीं पाया इस सब कॉन्टिनेंट का, बट इट इज़ ए ट्रिब्यूट टू द fortitude of the framers that they were not only able to draft a constitution under immense pressure but also learnt the right lesson from the unimaginable violence that accompanied partition. लेकिन हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, कि जिन्होंने इतने प्रेशर में भी आकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और जो एक अनइमेजिनल, मतलब इतना वायलेंस जिसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, जिसका एक रिज़ल्ट ही निकला कि पार्टीशन हुआ और उसके बावजूद भी बिल्कुल सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू अ न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप वेयर नॉट ओनली वुड माइनॉरिटीज़ बी सिक्योर, जहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटीज़ ही सिक्योर नहीं होंगे, बट रिलीजियस आइडेंटिटी वुड हैव नो बेयरिंग ऑन सिटीजनशिप राइट्स, बल्कि जो धार्मिक पहचान है वो भी किसी की सिटीजनशिप पर हावी नहीं होगी, उस पर लादी नहीं जाएगी. बट दिस अकाउंट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टचेस अपॉन ओनली द सरफेस ऑफ हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड. लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जिसने केवल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि किस तरह से बनाया जाएगा उसी को टच किया. ऑल्दो द मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल सफरेज, हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उनको यूनिवर्सल सफरेज के आधार पर इलेक्ट नहीं किया गया था, बट देयर वॉज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. लेकिन बिल्कुल सही तरीका लिया गया था कि इस असेंबली को एक ढंग से इलेक्ट किया जाए. Members of all the religions were given representation under the scheme described above. In addition, the assembly had 26 members from what were then known as the scheduled caste. और ऐसे 26 members भी लिए गए थे जिनको हम scheduled caste का नाम देते हैं. In terms of political parties, the Congress dominated the assembly, occupying as many as 82% of the seats in the assembly after the partition, and the Congress itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all shades of opinion within it. तो इतने सारे ऐसे सर्कमस्टांसिस में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना और बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन के बावजूद सबको समान अधिकार दिया गया, सबको रिस्पेक्ट दी गई. और सबसे बड़ी बात क्या प्रिंसिपल लिया गया? डेलिब्रेशन का. डेलिब्रेशन होता है बातचीत, समझौता, नेगोशिएशन, आपस में बहस होना, लेकिन पॉजिटिव बहस. द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज ब्रॉडली, दो नॉट परफेक्टली, रिप्रेजेंटेटिव, but it comes from the procedure it adopted to frame the constitution and the values its members brought to their deliberation. कहते कि ये सिर्फ और सिर्फ जो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने वो केवल ऐसे नहीं आई थी कि हर कहीं से भी ऐसे ही, बल्कि वो परफेक्टली, बहुत परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको लोगों ने चुना था और इसने सारे के सारा वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और उसमें हर मेंबर की अपनी वैल्यूज़ थी. नाउ while in any assembly that claim to be representative, it is desirable that diverse sections of society participate. It is equally important that they participate not only as representative of their own identity
or community, but each member deliberated upon the constitution with the interest of the whole nation. ऐसा नहीं था कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे सिर्फ अपने एरियाज़ या अपने धर्म या अपने वर्ग को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, बल्कि इस तरीके से बातचीत हुई थी कि सभी मेंबर्स पूरे नेशन को ध्यान में रख के, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिबेट्स कर रहे थे. देयर वर ऑफन डिसएग्रीमेंट्स अमंग्स मेंबर्स, कभी कभी डिसएग्रीमेंट भी हुआ, बट फ्यू ऑफ दीज डिसएग्रीमेंट्स कुड बी ट्रेस्ड, लेकिन इन डिसएग्रीमेंट्स को ट्रेस कर लिया गया टू मेंबर्स प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट. सो देयर वर लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल, सही डिफरेंसेस थे प्रिंसिपल्स में, इसके कानून नियमों में, एंड द डिफरेंसेस वर मैनी. शुड इंडिया अडॉप्ट अ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज सिस्टम, सबसे पहले जो डिफरेंस था वो ये था कि इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट होनी चाहिए. व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ जुडिशरी, शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट property rights. Almost every issue that lies at the foundation of a modern state was discussed. जो भी इशू एक नया मॉडर्न स्टेट बनाने के रास्ते में आ रहा था उस सबको डिस्कस किया गया with great sophistication. Only one provision of the constitution was passed without virtually any debate. सिर्फ एक प्रोविज़न था जो बिना डिबेट के पास हुआ, वो क्या था? द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज. उस पर किसी का कोई वाद विवाद नहीं था. यूनिवर्सल सफरेज बिल्कुल यूनानिमसली सब ने अपना उसमें यस किया, मीनिंग दैट ऑल सिटीजन्स रीचिंग अ सर्टेन एज वुड बी एंटाइटल्ड टू by voters irrespective of religion, caste, education, gender or income. So while the members felt no need at all to discuss the issues of who should have the right to vote, every other matter was seriously discussed. जबकि इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, बाकी सभी बातों पर सीरियसली डिस्कशन हुआ and debated. Nothing can be a better testament to the democratic commitment of the assembly. So the constitution drew its authority from the fact that members of constituent assembly engaged in what one might call public reason. तो इसीलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी अथॉरिटीज़ पे इस तरीके से काम किया, इस फैक्ट पे काम किया कि जो भी मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो सब इंगेज्ड थे अपने बिल्कुल सही पब्लिक राइट्स को लेके, पब्लिक रीजंस को लेके. द मेंबर्स ऑफ असेंबली प्लेस्ड अ ग्रेट एम्फोसिस, सबसे ज़्यादा किस बात पर जोर डाला? ऑन डिस्कशन एंड रीजन आर्ग्यूमेंट, कि डिस्कशन करना है और बिल्कुल सही ढंग से आर्ग्यूमेंट करना है. दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा, बट गेव प्रिंसिपल्ड रीजन्स टू अदर मेंबर्स फॉर देयर पोजिशन. द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजन्स टू अदर मेकर्स, यू मूव अवे from simply a narrow consideration of your own interest, because you have to give reason to others to make them go along with your own viewpoint. So the voluminous debates, जो भी उसमें debates हुए in the constituent assembly, where each clause होता है बिल्कुल point wise of the constitution was subjected to a scrutiny होता है बेटे छाट and debate, and it is tribute to public reason at its best. These debates deserved to be memorized as one of the most significant chapters in the history of constitution making, equal in the importance of French and American Revolution. So I hope that you must have understood the point. Now this is all for the day. Thank you and have a nice day.